Hello and welcome. Welcome to learning session number 6 of chapter number 8 of Science 2, which is cell biology and biotechnology. So far in this chapter, these are the topics we have already seen, right? First, we looked at cytology, which is the study of cell and the organs inside that cell. Then we had looked at stem cells, which are the type of cells through which all different types of cells are made. Then we looked at what research is being done in stem cells, what are its uses. Then we deep dived into organ and body donation, and we looked at main areas of biotechnology and what are its benefits. Then we started looking at commercial applications of biotechnology. What does commercial application mean? It means how can you use biotechnology to make profits, right? And under that, we had looked at crop biotechnology, animal husbandry, human health, in which we had seen vaccination. We looked at industrial products or white biotechnology, and we had seen what different colors of biotechnology indicate. It depends on the application of biotechnology. Then we saw how we can use biotechnology to improve the environment, to protect our environment. And finally, we looked at DNA fingerprinting, which is used in forensic science, right? So all these topics we have covered so far. These are the topics we're going to look at today. So we are going to see important stages of agricultural development. So we're going to look at green revolution, white revolution, and blue revolution. And then we'll look at fertilizers, insecticides, organic farming, and apiculture. All these things will look in relation to, in connection with biotechnology. Okay. These will be our learning objectives for today. Students will be able to enlist and describe stages of agricultural development. Agricultural development की जो stages है, उसका list बनाने आना चाहिए, and you should be able to describe it, describe the various stages. You should be able to give features of those different stages. And then the second objective for today is students will be able to explain fertilizers, insecticides, organic farming, and apiculture. Okay. These are the new words we're going to learn today. First one is dwarf, next far-flung, self-sufficient, pisciculture, humus. Okay, dwarf, far-flung, self-sufficient, pisciculture, and humus. Okay, let us start looking at green revolution. So, problems of population explosion. What is the meaning of population explosion? If in a very short amount of time, the population grows a lot, grows by a huge amount, that is known as population explosion. बहुत कम समय में population बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा, we'll call it as population explosion. So problems of population explosion were started to appear at the beginning of 20th century. Okay, 20th century कौन सा है? 1900s वाला. Okay, 1910, 1920, 1930, 1940, ये सब 20th century के. अभी हम कौन से century में है? We are in the 21st century. Okay, so जो कोई भी तुम्हारा century का number होगा, right? 21st century. तो जो years होंगे, उसके first दो numbers उससे एक कम होगा. So now we are in 21st century. So years कौन से होंगे? 2020, 2010, 2050. If you're in 20th century, 20 minus 1, 19. So 1910, 1920, 1950, 1947. एक नंबर कम हो जाएगा ईयर के फर्स्ट दो डिजिट से. ओके ओके, सो वी आर इन द 21st सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, यानी 1905, 1910, 1920, उसके उस टाइम के अराउंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो दिखने लग गए थे. ओके, ऑलमोस्ट all the countries, especially underdeveloped and developing countries, had been badly affected by the effects of poor quality and quantity of food. क्या हो रहा था? In very short amount of time, lot of people are being born, the population was increasing, and all the countries, and especially जो underdeveloped है, यानी जिनमें कुछ development हो ही नहीं रहा है, and developing countries, for example, India, Pakistan, Bangladesh, all these are developing countries. तो इनमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था. किसका प्रॉब्लम हुआ था? पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. एक तो बहुत कम खाना था. ओके, फार्मिंग उतना फास्ट इंक्रीज नहीं हुआ था, फार्मर्स उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए थे, बट जो लोग खाने वाले हैं वो इंक्रीज हो गए, राइट? सो बहुत कम खाना था, शॉर्टेज था खाने का, प्लस वो जो कुछ भी खाना बन रहा था उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था. न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, राइट? अच्छा खाने में से, दैट वाज आल्सो नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फूड. सो द क्वालिटी वाज आल्सो बैड एंड द क्वांटिटी, कितना फूड है वो भी खराब था. ओके, एंड दिस वाज अराइजिंग बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Various methods applied for harvesting यानी collect करना. Okay, harvest करना यानी collect करना.
So various methods applied for harvesting maximum yield from minimum land. Okay, yield यानी output, right? So ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का आउटपुट मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होने चाहिए, मिलने चाहिए, कलेक्ट होने चाहिए फ्रॉम मिनिमम लैंड, कम से कम लैंड पे। ओके, सो अगर छोटी सी जमीन भी होगी, उस छोटी सी जमीन पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें जो मेथड्स लगाते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? द मेथड्स वी यूज सो दैट कम से कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हम कलेक्ट कर पाए, उनको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो इम्प्रोवाइज्ड ड्वार्फ वैरायटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्वार्फ वैरायटीज? ड्वार्फ यानी स्मॉल इन साइज। ओके, जब भी साइज में छोटे होते हैं जो चीजें, उनको ड्वार्फ चीजें बोलते हैं। सो ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, proper use of fertilizers and pesticides and water management has led to increased production of food grains, and thereby large population had been saved from hunger. So because there was a population explosion, बहुत ज्यादा लोग बन गए थे और बहुत ज्यादा लोगों को फिर उतना ज्यादा खाना भी लगेगा, तो खाना और बनाना था, राइट, प्रोड्यूस करना था। उसके लिए क्या क्या किया? सबसे पहली बार इम्प्रूवाइज्ड डॉट वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस का इम्प्रूव्ड वर्जन लाया था, जो साइज में थोड़ा छोटा था बट उसका क्वालिटी अच्छा था। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। व्हाट इज द use or what is the function of a fertilizer? When you put fertilizer in the soil, the fertility of the soil increases, यानी उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। ओके, और फिर जो क्रॉप्स बनेंगे उसमें उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े, पेस्टिसाइड्स यानी कीड़ों मकोड़े को मारने वाली दवाई। सो पेस्टिसाइड्स को भी अच्छे से यूज करके क्रॉप्स वेस्ट नहीं होंगे, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे कीड़ों की वजह से, राइट? सो कैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। एंड फाइनली, वाटर मैनेजमेंट, कैसे हम कम से कम पानी में भी अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इन तीन मेन चीजों की वजह से food grains production has increased. Okay, and because of the increased food production, or production of food grains, large population has been saved from hunger. बहुत सारे लोगों को फिर भूखा सोना नहीं पड़ रहा है। Okay, if we wouldn't have increased our production of food grains, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता, many people would have died from hunger, but thankfully वैसा नहीं हुआ। Okay, Dr. Norman Borlaug, who is from USA, and Dr. M.S. Swaminathan, who is from India, have valuable contribution to green revolution. Okay, so you need to remember this name, Dr. M.S. Swaminathan. He had a very important role to play in green revolution. Okay, so that was green revolution. And finally, in your textbook, they have just given you a few names of institutes and laboratories where research is undertaken. Okay, for various crops, अलग-अलग crops के लिए कौन से institutes और laboratories research करते हैं, उसके examples दे दिया। So just read through all these examples once. इन सब institutions में research होता है crops के बारे में। Okay, next is white revolution. So if green revolution was about agriculture, white revolution किसके बारे में हुआ? If an easy guess is it will be about milk. Okay, so various parts of India were rich in milk and milk products. तो ऐसे कुछ कुछ जगह थे हमारे इंडिया में, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया थे जहाँ पे मिल्क काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, और मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी वी हैव रेड इन आवर स्क्रिप्चर, राइट, या फिर जो हमारे मिथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसमें हम फॉर एग्जांपल कृष्णा हमेशा माखन खाता है, माखन इज बटर, राइट, एंड it was made so back in time, so far back in time, right? So in India, from centuries, Indians have been making milk products. मिल्क से हम लोग छाछ बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, we make paneer. So many milk products have been produced in India for a very long time. Okay, so बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे इंडिया के जहाँ पे काफी इजीली मिल्क मिल जाता था और मिल्क के प्रोडक्ट्स भी मिल जाते थे। However, those products were not sufficient to meet the needs of far-flung regions. So what is the meaning of far-flung regions? Far-flung यानी बहुत दूर, बहुत रिमोट, रिमोट यानी जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। So कुछ कुछ पार्ट्स में इंडिया के मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से मिलते थे, और जो दूर दूर के पार्ट्स है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, इट्स अ वेरी रिमोट एरिया, वहां पे नहीं मिल रहा था, वहां पे
इनफ क्वांटिटी में नहीं मिल रहा था. ओके, सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन proved through proved through the cooperative movement and use of biotechnology that dairy will be a mainstream business. So again, white revolution का father doctors Verghese Kurian को माना जाता है. Again, an important name to remember. This is Dr. Verghese Kurian, and he had a huge role to play in white revolution of India. Okay, so क्या किया उन्होंने? Cooperative movement start किया. So what is the meaning of cooperative movement? So पहले है ना मिल्क का बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता. Why? Because there were many middlemen and traders. Okay, middlemen and traders you all know, right? So if say for example farmer keeps a cow in his or her farm, the milk from the cow that has to go to the market, right? कोई फार्मर के घर पे नहीं आने वाले और मिल्क को खरीदने के लिए. तो मिल्क पहले मार्केट में जाना चाहिए और मार्केट में से फिर लोग खरीदेंगे, right? So there were people in the middle who used to buy milk from the farmers and sell it in the market. So these are called as middlemen. उन्होंने ना ही मिल्क प्रोड्यूस किया है एंड ना ही वो लोग कंज्यूम करने वाले, वो बस यहाँ से खरीद के किसी और जगह पे बेच रहे हैं, राइट? सो ये लोग फार्मर्स को ठीक से पैसे कॉम्पनसेट नहीं करते थे. ओके, दे यूज्ड टू बाय मिल्क वेरी चीपली and they used to sell the milk and the milk products at very high prices in the market. So they were making lots of profits, but the farmers were not making a lot of profit, right? And इसलिए because people are not making profit, people did not keep a lot of cows, did not keep a lot of buffaloes in their farms because it's not profitable, right? अगर उसमें से पैसे बन रहे हैं तो farmers रखेंगे, अगर उसमें से पैसे नहीं बन रहे हैं तो farmers नहीं रखेंगे, right? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने प्रूव कर दिया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से काफी अच्छा बिजनेस बना सकते हैं डेयरी में. ओके, एंड ऑल्सो ही यूज्ड लॉट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इट. ओके, सो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है? सम विलेजर्स विल कम टुगेदर एंड दे विल मेक अ यूनियन. ओके, यूनियन मतलब क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स. सम few farmers of a village or 2-3 villages, they are going to come together and they are going to have their own system कि कब और कैसे मिल्क को कलेक्ट करना है, कैसे मार्केट तक पहुंचाना है, कैसे बेचना है, कौन से रेट्स पे बेचना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय दिस कोऑपरेटिव यूनियन, राइट? सो अगर जब विलेजर्स साथ में आते हैं और मिडलमैन को हटा देते हैं और वो सब कुछ कंट्रोल करने लग जाते हैं तो काफी अच्छा बिजनेस बन जाता है. सो व्हाट हैपेंड? बिकॉज ऑफ दिस मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट कीपिंग काउज एंड बफेलोस, क्योंकि उसमें से बहुत प्रॉफिट होने लग गया. एंड हेंस मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज, और फिर जो दूर दूर जगह पे मिल्क नहीं मिल रहा था वहां पे मिलना शुरू हो गया. ओके, सो ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद, which is an area in Gujarat. It's a place in Gujarat, Anand, at all-time high status. Okay, so an interesting fact I'll tell you all. Okay, you all know one of the biggest milk and dairy product company कौन सा इंडिया में? It's Amul, right? Amul butter, Amul cheese, so many products from Amul we eat, we drink on a daily basis. Butter is synonymous with Amul. Butter use करना तो Amul butter ही use करते हैं majority of the people. Okay, so Amul actually it's a full form of something. Okay, उसका full form क्या है? Amul में AMUL, right? A for Anand, M for milk, U for union, L for limited. So Amul AMUL is Anand Milk AMUL, Anand Milk Union Limited. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ओके, सो ये बेसिकली यहाँ का कंपनी है आनंद. एंड ये कहाँ से आया था? ये कोऑपरेटिव में से आया था. कुछ विलेजेस साथ में आके वो लोग ने अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाया, यूनियन बनाया, और फिर वो अमूल बन गया. ओके, एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट. सो आज अमूल की वजह से कितना ज्यादा बिजनेस होता है, कितने लोगों को जॉब्स मिल रहा है अमूल की वजह से, कितने लोगों को मिल्क मिल रहा है अच्छे से. एंड अमूल हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दैट, राइट? एंड अमूल आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है. So all of that began with this cooperative movement in Anand. And फिर बाद में अमूल का जो नाम है वो भी वैसे ही बना है, Anand Milk Union Limited. Okay, so that was about white revolution. Let's move on. Okay, before that, there are two very good videos I found on YouTube about these cooperatives. Okay, so there is this one documentary which I'll keep a link to in the description of this YouTube video. Okay, so इस YouTube video के description में उस documentary का तुम्हें link मिल जाएगा. It's a very interesting documentary which talks about white revolution and the milk industry in India. Okay, milk and dairy industry in India.
The second video is about history of Amul. Okay, so Amul का जो history है, it starts before independence. So um, generally we think history matlab it's all about India, it's all about, I mean not just India, it's all about wars and पहले कौन सी dynasty थी, कौन सा king आया, कौन सी queen आई, so on and so forth. But companies का history is also very it's a very interesting thing to learn about. I really love to follow and read about हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. फॉर एग्जांपल एप्पल कैसे शुरू हुआ, गूगल कैसे शुरू हुआ, Amazon कैसे शुरू हुआ. सिमिलरली अमूल इज a huge company in our country, and I think it will be very interesting to learn about its history कि इंडिपेंडेंस के पहले से कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट से अमूल ये कंपनी बॉर्न हुई थी. So that link also I'll send, I'll post it in the description of this video. So I highly recommend, I highly advise you all watch that documentary. It's a 40-minute documentary, and if you don't have that much amount of time, you can at least watch the history of Amul company. It's I think 10-15 minute video. Okay, so do watch it. I highly recommend it. It's very interesting, very fascinating. Okay, so while achieving self-sufficiency, what is the meaning of self-sufficiency? यानी it is independent, बाकी किसी external help की जरूरत नहीं है. जो कुछ भी लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सैलरीज के लिए जो पैसे लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पैसे लगेंगे, वो खुद से प्रॉफिट्स में से निकाल सकते हैं, राइट. तो किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है पैसों की. तो सेल्फ सफिशिएंट यानी इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट में से ही सारे खर्चे निकल रहे हैं. So while achieving self-sufficiency in daily business, various experiments were performed for quality control, newer daily products and their preservation. बहुत सारे experiments भी हुए एक बार business set होने के बाद, कैसे हम quality को control कर सकते हैं. Quality कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, same quality होना चाहिए. नए daily products, for example, I told you, right? Nowadays you can get dahi in different flavors. So अलग अलग फ्लेवर्स के दही कैसे बना सकते हैं. एंड द प्रिजर्वेशन यानी अगर तुमने एक डेली प्रोडक्ट बना दिया, वो शेल्फ पे और ज्यादा टाइम के लिए रहना चाहिए. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर समझो दही बना दिया वो 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा वरना वो खराब हो जाएगा. हाउ कैन आई मेक दैट लास्ट लॉन्गर, हाउ कैन आई मेक दैट लास्ट 5 days, 10 days, even months on the counter or in the shelf of supermarkets. That's the meaning of preservation. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये सब चीजें इंप्रूव करने की कोशिश की गई थी इन व्हाइट रेवोल्यूशन. ओके, so there's an interesting question given in your textbook. Okay, why people from all over the world are again preferring the local wild varieties? What are they talking about? They're talking about cows. Okay, जिसमें से मिल्क मिलता है. तो पहले पहले एक फैशन हो गया था, स्पेशली इन इंडिया. कुछ भी फॉरेन चीज होगी तो उनको लगता है कि वो सुपीरियर चीज है, कुछ फॉरेन से है यानी वो ज्यादा बेहतर है. That's an assumption Indians generally make, right? So people in India were also started breeding foreign cows and buffaloes. Okay, so न्यूजीलैंड के काउस काफी फेमस थे, फिर बाद में डेनमार्क एंड जर्मनी के काउस काफी फेमस थे. तो उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर उसको उनको यहाँ पे ब्रीड करेंगे और फॉरेन वैरायटीज को वो लोग ब्रीड करके उनका मिल्क ले लेंगे. तो अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली people from all over the world are again preferring the local wild varieties. तो ऐसा दूसरे कंट्री का कोई दूसरे कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट का कोई काव या बफेलो को वो लोग नहीं ब्रीड करते. वो लोग अपने लोकल उनके एरिया में जो बफेलोज मिलते हैं नेचुरली उनको ही, बफेलोज एंड काव जो मिलते हैं नेचुरली उनको ही ब्रीड करते हैं. ऐसा क्यों? Okay, so here is the answer. Local varieties of cattle used for production of milk and milk products have certain advantages over use of foreign or hybrid varieties. Foreign varieties का मतलब समझ गया, right? न्यूजीलैंड को काउ को लेके आके तुम इंडिया में ब्रीड कर रहे हो तो फॉरेन वैरायटी हो गया. हाइब्रिड वैरायटी क्या होगा? हाइब्रिड मींस मिक्सचर, राइट, या फिर कॉम्बिनेशन. सो तुम फॉरेन काउ को लेके आ जाओ एंड यू टेक some Indian variety and then you let them breed and that will be a hybrid variety. Okay, so foreign हो जाए या फिर hybrid variety हो जाए, and sorry, local varieties will have some advantages over either foreign or hybrid varieties. Okay, what are those advantages? Firstly, milk obtained from local varieties of cattle are known to be a rich source of A2 beta casein. Okay, so what is A2 beta casein? A2 beta casein is a protein, right? We have heard, right, that milk has a lot of protein, it's good for proteins. So A2 beta casein is a very important protein found in milk. Okay, and it is far healthier, ज़्यादा अच्छा होता है than A1 beta casein. Okay, and A1 beta casein is generally present in milk of foreign or hybrid breeds. Okay, अगर foreign का होगा, foreign
या फिर हाइब्रिड काउ होगा, उसमें जनरली A1 वाला प्रोटीन होगा, ओके, विच इज बीटा केसिन, whereas the local varieties will generally have A1 protein, and sorry, A2 protein, and A2 is generally considered healthier, ज्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए as compared to A1. Okay. Next, A1 beta casein has been implicated to be a cause of heart disease, type 1 diabetes, autism, and schizophrenia. All these are diseases, right? ये सब disorders है, diseases है. And ये किसकी वजह से होता है? Research बता रहा है A1 beta casein की वजह से. तो A1 actually it can harm your health, right? And A1 किस में मिलता है? A1 protein will get in foreign or hybrid breeds. Okay. देसी मिल्क यानी जो उसी लोकल रीजन का होगा, लोकल वैरायटी का होगा, उसको देसी बोलेंगे. So देसी milk is also beneficial for people suffering from problems like irritable bowel syndrome. What is irritable bowel syndrome? Basically पेट अगर खराब होगा, ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा, okay? So that is known as irritable bowel syndrome. Irritable यानी बहुत uncomfortable feel हो रहा है, okay? So अगर वैसा प्रॉब्लम हो किसी को, उनके लिए भी जो लोकल वैरायटी का मिल्क होता है, दैट्स बेटर फॉर देम. ओके, तो दिस इज द रीजन व्हाई आजकल लोग लोकल वैरायटीज को प्रेफर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू काउज एंड बफेलोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एज कंपेयर टू फॉरेन वैरायटीज और हाइब्रिड वैरायटीज. ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर इज, सी यहाँ पे बोल रहे हैं राइट कि A1 जो बीटा केसिन है, जो फॉरेन और हाइब्रिड ब्रीड्स में जनरली मिलता है, वो जनरली हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिजीज से लिंक्ड है. Also, another fact I'll tell you all, okay, कुछ साल पहले, if I don't know if you all were born that time, but there used to be advertisements on TV कि how milk is good for your health, right? कि milk तुम पीना चाहिए, especially children should drink milk and it's very good for health, it makes their bones stronger, this and that. But यहाँ पे what are they saying कि बीटा 1 केसिन वाली जो मिल्क है उसमें ये सब प्रॉब्लम्स है. Another fact which is not given in your textbook, which has not been asked in your textbook, it's an important and interesting fact to know is, um, most of the world is lactose intolerant. Okay, lactose is the type of protein found in milk. Okay, so lactose intolerant, tolerant यानी सहन कर सकता है, intolerant यानी सहन नहीं कर सकता. Okay, so lactose intolerant यानी मिल्क में पाने वाला जो प्रोटीन है वो सहन नहीं कर सकता है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, पेट खराब हो जाएगा. So a recent survey says कि 60 to 65% of Indians are lactose intolerant. यानी हम लोग दूध को पचा नहीं सकते. We cannot digest milk, right? So अगर more than half, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का अगर मिल्क को सहन नहीं कर सकता, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, शुड वी बी ड्रिंकिंग मिल्क? मिल्क इतना अच्छा है क्या किसी के बॉडी के लिए? क्योंकि पहले एडवर्टाइज क्या करते हैं, बोन्स के लिए अच्छा है, प्रोटीन के लिए अच्छा है, इट हैज वेरी गुड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. बट अभी रिसर्च क्या बता रहा है, कुछ कुछ मिल्क में ये सब डिजीज का प्रॉब्लम है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, दूध को पचा नहीं सकता. हेंस मेनी पीपल आर शिफ्टिंग टू वीगनिज्म. ओके, सो पहले कुछ लोग वेजिटेरियन होते थे, राइट? वेजिटेरियन का मतलब क्या है? फिश नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, बेसिकली कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, राइट? बट Indians have many vegetarians, right? But vegetarians can eat dairy products. वो लोग दूध पी सकते हैं, चीज खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं. Now new type of people is vegan people. Okay, VEGN, vegetarian is different, vegan is different. So vegan में non-veg भी नहीं खाएंगे and vegan में milk products भी नहीं लेंगे. Okay, so the reason is different. वो लोग बोलते हैं कि काउस बफेलोस को हार्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे. बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी veganism is turning out to be a good option, because as I told you, right, most of the population cannot digest milk. तो मिल्क क्यों पीना, डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों खाने, राइट? सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू एक्सप्लोर. अगर तुम लोग को एक्सप्लोर करना है, तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, इफ यू वांट टू रिसर्च मोर अबाउट कैसे तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है अगर तुम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दो, यू कैन रिसर्च ऑन वीगनिज्म. ओके, VEGAN, veganism, ISM. Okay, great. Let's move ahead. Blue revolution. So production of various useful aquatic organisms with the help of water is called as blue revolution. So green revolution crops के बारे में था, agriculture के बारे में था. Next was white revolution जो milk के बारे में था. Blue revolution is about aquatic animals, पानी में जो organisms मिलते हैं उसके बारे में.
So farm ponds are very common in East Asian countries. Okay, East Asian countries are India, Bangladesh, Indonesia, all these countries. Okay, so इसमें farm ponds काफी कॉमन है. फार्म पॉन्ड्स यानी तुम्हें पता है, इट्स लाइक अ स्मॉल लेक. पॉन्ड इज अ स्मॉल लेक. तो उसमें फार्मिंग हो रही है. किसकी फार्मिंग हो रही है? एक्वेटिक एनिमल्स की. ओके. However, people are not only thinking of cultivating the fishes and shrimps, but other aquatic plants and animals too. अभी वो लोग सिर्फ फिश को और श्रिम्प्स को कल्टीवेट नहीं कर रहे उन फार्म पॉन्ड्स में. वो लोग दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को भी कल्टीवेट करने की सोच रहे हैं. ओके, उन फार्म्स में. व्हाट आर श्रिम्प्स? Shrimps is nothing but इट्स अ सर्कुलर फिश. इतना छोटा सा फिश होता है, जैसा स्पाइरल जैसा होता है. उसको आई थिंक इंग्लिश में प्रॉन्स बोलेंगे, मराठी में कोलंबी बोलेंगे. ओके, इन मुंबई, स्पेशली मुंबई, पुणे, यू विल कॉल इट कोलंबी, or in English it will be called as prawns. Okay, so those are shrimps. Government of India has vowed to increase the production by encouraging the people for pisciculture. What is pisciculture? Pisciculture यानी breeding and rearing of fishes. Okay, अगर तुम fish को ब्रीड करो, ब्रीड करना यानी क्या? क्रॉस करना, सिलेक्ट करना कि अच्छा ये एक अच्छा फिश है, ये एक अच्छा फिश है, इन दोनों को ब्रीड कर देंगे, जो इनके जो बच्चे हो जाएंगे वो भी अच्छे क्वालिटी के होंगे. उसको बोलते हैं ब्रीडिंग. सो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, कि किसको किसके साथ ब्रीडिंग करना चाहिए ताकि क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए. सो दैट इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड कल्टिवेटिंग और फिश बनाना. दैट इज नोन एज पिसिकल्चर. सो गवर्नमेंट उसको एनकरेज कर रहा है पिसिकल्चर को बाय लॉन्चिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड नील क्रांति मिशन. नील क्रांति का मतलब क्या? क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन. नील का मतलब क्या? नील मीन्स वाटर. ओके, सो नील क्रांति मिशन 2060. तो कैसे एनकरेज कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है? 50 to 100% सब्सिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस. व्हाट आर सब्सिडीज? दे कैन आइदर बी टैक्स बेनिफिट्स, कि कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, या फिर पैसे ऑफर करते हैं. गवर्नमेंट पैसे देती है पिसिकल्चर का इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरी इज पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल. तुम मरीन यानी क्या? जो सॉल्ट वाटर में मिलते हैं. फ्रेश वाटर यानी जो लेक्स एंड पॉन्ड्स में मिलते हैं, उनके फिश को लार्ज स्केल में, बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करना, ग्रो करना पॉसिबल हो गया. इफ यू कैन सी हियर, दिस लुक्स लाइक अ स्मॉल पॉन्ड, राइट? और बीच बीच में यहाँ पे मशीन्स दिख रहे हैं. एंड दिस अ श्रिम्प. ओके, प्रॉन्स. Freshwater fishes like rohu, katla, and other fishery products like shrimp and lobsters are being cultured on large scale. तो ये सब fishes और shrimps को large scale पे grow कर रहा है. Okay, under blue revolution. Next, so that was about blue revolution. Now we're starting with fertilizers. Okay, so there are two types of fertilizers. First one is organic manure and the second one is chemical fertilizers. Organic manure क्या है? Organic मतलब जो living organism में से आया, and manure is basically waste product of animals. Okay, so waste product of animals जो होंगे, उसमें जो living, because it has come from living organisms, उसमें बहुत सारे ऐसे nutrients and microorganisms होंगे जो soil में अगर तुम add करोगे, soil को काफी फायदा होगा. Okay, water holding capacity of the soil improves with soil conservation ड्यू टू यूज ऑफ मेन्योर. सो अगर तुम मेन्योर को यूज करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर को यूज करोगे, सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी क्या? उस सॉइल में कितना पानी रह सकता है. ओके, देयर आर टू ऑप्शंस, राइट? अगर तुम उसमें पानी डाल रहे हो, उसका पानी पूरा नीचे आके कहीं और पे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या फिर जब तुम सॉइल में पानी डाल रहे हो, सॉइल में पानी बैठ जाएगा, वहीं पे वही रह जाएगा, वो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और होल्ड करेगा पानी को. सो जो होल्ड करने का कैपेसिटी, कितना अच्छे से पानी को वहां पे रख सकता है सॉइल के अंदर, वो इंप्रूव हो जाता है जब तुम मेन्योर यूज करते हो. एंड अगर ज्यादा पानी होल्ड करके रख रहा है सॉइल, इट्स बेटर फॉर द प्लांट, राइट? प्लांट को फिर, या फिर जो क्रॉप्स तुम ग्रो कर रहे हो, या फिर जो प्लांट्स तुम ग्रो कर रहे हो, उनको ज्यादा पानी मिलेगा, इजीली पानी मिल जाएगा. सो इट्स अ गुड थिंग फॉर प्लांट्स. Upper layer of soil essential in agriculture is formed due to humus formation. Okay, so what is humus formation? Humus formation is nothing but the organic matter. Okay, organic matter यानी क्या? जब भी लीव्स गिर जाते हैं, या फिर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी डेड बॉडीज गिर जाती है सॉइल में, और उनपे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर देते हैं, वो जो मटेरियल बन जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन मोर टाइम. व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉइल. ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे फॉर्म होता है? तो लीव्स, पत्ते, स्टेम्स, प्लांट का बॉडी, या फिर एनिमल के बॉडीज, वो जो मर के
सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे उसको डिकम्पोज करते हैं, जो चीज बन जाती है, जो चीज रह जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर. सो दैट ऑर्गेनिक मैटर इज नथिंग बट humus. Okay, so upper layer of soil essential in agriculture is formed due to humus. वो जो मिट्टी का ऊपर का लेयर होता है जो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ह्यूमस की वजह से होता है, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होता है. Various essential elements like nitrogen, phosphorus, potassium. I hope you all have not forgotten all these symbols. Okay, periodic table को याद करो. Periodic table में N is nitrogen, P is phosphorus, uh, K is potassium. So all these essential important elements, they can become available to crops due to earthworms and fungi. Fungi काम करके soil में काम करके they are going to make these elements available for the crops to absorb. And earthworms क्या करते हैं, earthworms छोटे छोटे holes बना देते हैं, right, soil में. उसकी वजह से air अंदर चले जाता है, और जब air अंदर जाता है, air में से जो कोई भी एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करने सॉइल को कर पाते हैं. ओके, सो हेंस आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेंबर और नॉट, ऑल मस्ट हैव स्टडीड give reason in your previous classes. Give reason, earthworms are called as friends of farmers. Earthworms are called friends of farmers क्योंकि वो सॉइल में छोटे छोटे होल्स बना देते हैं, टनल्स बना देते हैं, उससे एयर फ्लो होना शुरू कर जाता है सॉइल से, विच इज अ गुड थिंग फॉर सॉइल. ओके, तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं क्रॉप्स के लिए. In soil, in soilless farming, that is hydroponics. Okay, hydroponics, not phonics. So what is soilless farming? बिना मिट्टी के फार्मिंग करना. बिना मिट्टी के कैसे कर सकते हो? So मिट्टी के ऊपर वो लोग स्पंज रखेंगे, स्पंज जैसी एक चीज होती है. ओके, उस स्पंज में वो लोग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, और स्पंज में वो लोग फिर बाद में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, पानी होगा, वो सब प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, वो स्पंज में एक लिक्विड वो लोग स्प्रे कर देते हैं, और उस लिक्विड में से सारे न्यूट्रिएंट जो क्रॉप को चाहिए मिल जाता है. पानी भी स्प्रे कर लेते हैं, तो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस स्पंज जैसे मटेरियल में से. ओके, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, सॉइल के बिना फार्मिंग. सो उसमें लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं. मैंने जो बोला है, जो लिक्विड स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे में फर्टिलाइजर्स भी होंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप्स को मिल जाएंगे. However, there are more harmful effects of liberal use. Liberal use यानी खुल के यूज करना, बहुत ज्यादा यूज करना. So liberal use of chemical fertilizers has many harmful effects. अगर बहुत ज्यादा तुमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना शुरू कर दिया, उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. इट इंक्लूड्स डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी यानी कितने न्यूट्रिएंट्स है, कितना अच्छे क्वालिटी का सॉइल है, तो कम हो सकता है अगर तुमने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किया तो. सो हियर यू कैन सी वन गोनी, वन पैकेट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इट्स यूरिया. ओके, नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स. व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स? इंसेक्ट्स तुम लोग को पता है, कीड़े. आईसाइड्स मतलब उनको मारने वाली चीज. ओके, सो दो द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शंस, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज नॉट अंडर कंट्रोल. बहुत बार क्या होता है, अगर कोई प्लांट को इन्फेक्शन हो जाता है, प्लांट्स में भी इम्यूनिटी होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कोई बीमारी हो गई, हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, राइट. सिमिलरली प्लांट्स में भी होता है वैसा. अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, they also have the ability to make antibiotics. तो उनका natural immunity है. Okay, खुद से वो लोग fight कर सकते हैं. But फिर भी today many farmers use insecticides without any control. बहुत ज्यादा insecticides मार देते हैं. Irrespective of the natural friends of farmers like frogs and insectivorous birds. Okay, so farmers की कुछ natural friends है. Natural friends कौन कौन है? Frogs, then insectivorous birds. Okay, so insectivorous birds यानी जो insects को खाते हैं. So अगर ऐसे बर्ड्स होंगे जो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि बर्ड्स ही वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, तो ज्यादा प्लांट को नुकसान नहीं होने वाला है. तो केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है. तो ये सब होने के बावजूद, जो नेचुरल फ्रेंड्स है फार्मर्स के, उसके बावजूद पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू इंक्रीज इन यील्ड. आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे फार्मर्स पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जिससे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सके. कम क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, कम क्रॉप्स डैमेज हो गए तो ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे या फिर इनको बेच पाएंगे, राइट. दैट वाज इंसेक्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन. सो देयर टाइटल में लिखा है इंसेक्टिसाइड्स, और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स बोल रहे हैं. ओके, बोथ ऑफ देम मीन द सेम. इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट बोथ मीन कीड़े मकोड़े. आईसाइड्स यानी कीड़े मकोड़े को मारने वाला. सो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऑलमोस्ट मीन द सेम. ओके, सो पेस्टिसाइड्स आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन. जो पेस्टिसाइड्स होता है वो जहर की तरह होता है.
This poison enters the food web through water and food, and its biomagnification occurs. Okay, so इसका मतलब क्या है? Food web, if you remember, we have studied in our previous chapters, right? Food web क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को कोई एनिमल खाएगा, उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाएगा, उस दूसरे एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब. सो क्या हो जाएगा अगर समझो क्रॉप्स पे इफ यू स्प्रे सम केमिकल, ओके, सो दैट केमिकल इज गोइंग टू एंटर द फूड वेब. फॉर एग्जाम्पल उसको कोई छोटे छोटे जानवर खाएंगे, उन छोटे जानवर को कोई बड़े जानवर खाएंगे, उन बड़े जानवर को फिर हम लोग खा लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली उन क्रॉप्स में से खा लेंगे. और जब मैं उन उन प्लांट्स को खा रहा हूँ, उन क्रॉप्स को खा रहा हूँ जिसमें पेस्टिसाइड्स थे, मेरे जो चिल्ड्रन होंगे, मेरे जो बच्चे होंगे, उनमें भी वो आ जाएंगे, राइट? सो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. कोई छोटे छोटे एनिमल्स पहले खाना शुरू कर देंगे, उन छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाएंगे, बड़े एनिमल्स को और बड़े एनिमल्स खाएंगे, फाइनली जो खाएगा उसमें बहुत ज्यादा पॉइजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगहों से हमारे खाने में वो पेस्टिसाइड आ रहा है, विच इज अ टाइप ऑफ पॉइजन, एक टाइप का जहर है. इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. ओके, वेरियस पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरोपाइरीफोस etc. have been proved to be dangerous. ये सारे एग्जांपल्स है पेस्टिसाइड्स के. ओके, डीडीटी पाउडर का एक पैकेट का यहाँ पे फोटो दिया, राइट? सो डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरोपाइरीफोस, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स जिनको प्रूफ कर दिया है साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, कि वो काफी डेंजरस हो सकते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए भी. ओके, सो दोज वर insecticides. Let's now move on to organic farming. Okay, so nowadays organic farming and organic products have become buzzwords. Buzzwords यानी बहुत चर्चे में, हर कोई बोल रहा है organic farming, organic products, organic farming, organic products. So buzzword यानी चर्चे में, काफी फेमस है, बहुत लोग उसके बारे में बोल रहे हैं. Okay, organic products are being available and demand for them is ever increasing. Okay, so organic products का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो रहा है. वाई, क्यों इंक्रीज हो रहा है? इतना क्या स्पेशल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में? केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल. बहुत सारे लोगों को भी पता चल चुका है कि जो फार्मर्स है बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उनके क्रॉप्स पे. These poisonous chemicals reach the human body through food and water, and their adverse harmful effects on human and environment become apparent. Okay, so बहुत सारे लोगों को ये भी पता चल गया कि ये जो पॉइजनस केमिकल्स यूज कर रहे हैं क्रॉप्स पे, वो ह्यूमन बॉडी में आ चुका है, हमारे खाने में से आया है और हमारे पानी में से भी है. वो जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो सीप इन हो जाएंगे सॉइल में. ओके, सॉइल में से नीचे चले जाएंगे और ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाएंगे. तो ग्राउंड वाटर से हम पानी पीते हैं, राइट? सो वहां से भी हमारे बॉडी में आ चुका है. सो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स दिखना शुरू हो चुके हैं, एंड एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो केमिकल्स एनवायरमेंट में स्प्रेड हो रहे हैं. ओके, सो बहुत सारे लोगों को अभी ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वाले क्रॉप्स नहीं चाहिए, प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, उनको बिना केमिकल और पेस्टिसाइड और बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्रॉप्स चाहिए. सो दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, सो various problems like soil fertility and pest infestation have become serious. बहुत सारे जगहों पे सॉइल फर्टिलिटी यानी सॉइल का क्वालिटी खराब हो चुका है. पेस्ट इन्फेस्टेशन यानी बहुत सारे जो कीड़े हैं जो क्रॉप्स को खा लेते हैं वो आ चुके हैं सॉइल में. ये प्रॉब्लम जो है काफी सीरियस बन चुका है. सो एज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स फार्मर्स आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड यूज ऑफ लोकल स्टर्डी वैरायटीज एंड देयरबाय मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस. दो चीज है, दो इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक फार्मिंग की. पहले केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे. सेकेंडली कौन से क्रॉप्स ग्रो करेंगे? लोकल और स्टर्डी वैरायटीज. वहां उस रीजन में कौन से नेचुरली मिलते हैं क्रॉप्स जो अच्छे से वहां पे ग्रो करते हैं, वैसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे. क्योंकि कोई स्पेशल क्रॉप, कोई एक्सोटिक क्रॉप, कोई फॉरेन क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे. उससे क्या नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि लोकल चीजें यूज कर रहे हैं, राइट? लोकल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. सो दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज एपीकल्चर. ओके, सो यू मस्ट हैव सीन बी हाइव्स. बी हाइव यानी क्या? मधुमक्खी का छद्दा. ओके, व्हाट इज बी हाइव? मधुमक्खी का छद्दा. सो तुम लोग ने देखा होगा, राइट? कहीं कहीं पे पेड़ों पे या फिर बिल्डिंग के कहीं पे टॉप फ्लोर पे वगैरह लोग अपना बी हाइव बना देते हैं, मधुमक्खी अपना छद्दा बना देते हैं. वर्स्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग हनी फ्रॉम दीज हाइव्स इज, एकदम बुरी तरीके से, एकदम सबसे खराब तरीके से उसमें से
शहद, हनी इज व्हाट, शहद, राइट। हनी निकालने का सबसे बेकार तरीका, सबसे खराब तरीका क्या होगा? इज ड्राइविंग अवे द बीज बाय स्मोकिंग द हाइव विद बर्निंग टॉर्च। ओके, ड्राइविंग अवे द बीज यानी वो जो मधुमक्खी उनको भगा देना। कैसे भगाओगे? बाय स्मोकिंग द हाइव विद बर्निंग टॉर्च। क्या करते हैं लोग? एक लकड़ी ले लेंगे, लकड़ी के एंड पे वो लोग फायर लगा देंगे। दे टॉर्च, टॉर्च करना यानी टू स्टार्ट अ फायर, टू लेट इट, टू इग्नाइट इट। ओके, टॉर्च करना यानी जला देना। तो एक लकड़ी लेंगे, लकड़ी के एंड को जला देंगे, उसमें से बहुत धुआं निकलेगा। तो धुएं को तुम लोग छद्दे के पास लेके जाओगे, कीप इट नियर द बी हाइव, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल द बीज आर गोइंग टू रन अवे, राइट। सो दैट इज ड्राइविंग द बीज अवे। कैसे ड्राइव करोगे? बाय स्मोकिंग द हाइव विद बर्निंग टॉर्च एंड देन कटिंग द हाइव इनटू पीसेस। वो जो छद्दा है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसमें से हनी बाहर निकाल दोगे। ओके, बट दिस दे आर सेइंग इट्स द वर्स्ट मेथड। ओके, सबसे खराब मेथड है ये हनी को कलेक्ट करने के लिए। क्यों खराब है? दिस मेथड कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाइव। वो जो छद्दा है, मधुमक्खी जो इतने मेहनत से बनाते हैं, इट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम फॉर द हनी बीज टू मेक दैट बी हाइव। तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग इतनी मेहनत से वो लोग ने जो बनाया। एंड सेकेंडली, लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज अकर्स। ओके, कि हम लोग स्मोक यूज कर रहे हैं, स्मोक की वजह से बहुत सारे बीज, बहुत सारे मधुमक्खी मर जाते हैं। ओके, इसलिए वो काफी खराब मेथड है। इट्स नॉट द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट हनी। However, it is easy to collect honey without destroying the hive and bees if artificial bee boxes are used. तो इससे अच्छा मेथड जो चाहिए हो, अगर तुम्हें चाहिए हनी को कलेक्ट करने के लिए, तुम क्या यूज कर सकते हो? आर्टिफिशियल बी हाइव्स। ओके, तो छद्दे से निकालने से अच्छा आर्टिफिशियल बॉक्स बना दो बीज के लिए, और वहां पे वो लोग अपना हनी कलेक्ट करेंगे। उसमें से तुम निकाल सकते हो बिना उनका बी हाइव को डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल बॉक्स बनाए जो बार बार यूज कर सकते हो, और क्योंकि तुम स्मोक यूज नहीं कर रहे हो इसलिए बीज मरेंगे भी नहीं। ओके, तो ट्रेडिशनली ऐसे बी हाइव्स में से मधुमक्खी, सॉरी, ऐसे हनी निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी एक्चुअली वो आर्टिफिशियल बॉक्स ही यूज कर रहा है, बट इंस्टेड अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल बॉक्स नहीं होता, समझो किसी पेड़ पे लगा होता है, फिर किसी बिल्डिंग पे आया होता, तो वो लोग यहाँ पे स्मोक करते हैं, राइट। यूजिंग स्मोक वो लोग हनी निकाल देते हैं, बट नाउअडेज वो लोग ऐसे यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आर्टिफिशियल बॉक्स है, उस आर्टिफिशियल बॉक्स में हनी बीज आके अपना हनी कलेक्ट कर लेते हैं। वो लोग ने अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना है। ओके, सो वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहे हैं, ताकि बीज उनको काटेंगे नहीं, दे वोंट बाइट, एंड बिना स्मोक किए वो लोग फिर हनी यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, सो ये जो बॉक्स है उनको बार बार यूज कर सकते हैं, और क्योंकि स्मोक यूज नहीं करने, द हनी बीज वोंट डाई। ओके, तुम सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव गियर पहन रहे हो। सो दैट्स अ बेटर, दिस नोन एज एपीकल्चर। ओके, so that is it. Just check whether you have accomplished today's learning objectives or not. Will you be able to make a list and describe all the stages of agricultural development? Can you explain me fertilizers, insecticides, organic farming, and apiculture? If your answer is yes, then you have achieved today's learning objective. Okay. These were the new words we learned today. Dwarf यानी small in size, far flung यानी very far away या फिर remote places जहाँ पे बहुत कम लोग हैं. Self sufficient यानी apply to supply its own needs without external help. जो कुछ भी खुद की जरूरतें है, सैलरीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तुम्हें प्रॉफिट में से निकल रहा है। ओके, किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट यानी इंडिपेंडेंट हो। फिजिकल्चर यानी कंट्रोल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग यानी कैसे क्रॉस कर रहे हो, कौन से फिश को किसके साथ मेट कर रहे हो। एंड रेयरिंग, रेयरिंग यानी उनको ग्रो करना, उनको प्रोड्यूस करना। सो कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश इज नोन एज फिजिकल्चर। ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। वो कैसे फॉर्म होता है? by decomposition of leaves and other plant material by soil microorganisms. Okay, so these were the new words we learned today, and that is it for this learning session. I hope you found it interesting. I found this topic very interesting, and I had to research a lot to explain things better. Do check out the story of how Amul started, Anand Milk Union Limited, and do, if you have time, watch the documentary on the dairy industry. Okay, both the links will be down in the chat box. No, not in the chat box. I'm used to Zoom now. It will be in the description of this video. And secondly, what I want you all to do is I want you all to express your thoughts, give me your opinion about, do you think people should drink milk or consume dairy products? अगर तुम्हें पता है कि 60% 65% ऑफ इंडियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी उनको उनसे मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर भी उनको मिल्क पीना चाहिए क्या, या फिर हमें मिल्क को बैन करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है, रिसर्च ने बोला है कि इतने सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मिल्क को
digest नहीं कर सकते. What do you think? Should we drink milk? Do you think it's good for our health? And should we ban usage of milk, consumption of milk, because many people are lactose intolerant? Do put your views in the comment section of this video. Okay, I would love to hear your opinions about whether or not we should drink milk or not. Okay, so that's it for this learning session. I hope you had fun, and I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.